Hello students. Uh, Before our topic is acid, and then I will discuss base and indicators both. But before discussing base, we discuss indicator because that is also most important topic. Okay. Now indicator. What is a indicator? Indicator that means that is a dye which identify that solution or acid or base. मतलब कि ये हमको आइडेंटिफाई कराता है कि ये एसिड है कि बेस है. ठीक है, तो दैट इज इंडिकेटर. इंडिकेटर इज डिवाइडेड बाय थ्री पार्ट्स. क्लियर? व्हाट इज अ इंडिकेटर? इंडिकेटर जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमको ये बताता है कि ये एसिड है कि बेस है. ठीक है, ये हमको ये आइडेंटिफाई करा रहा है कि एसिड है कि बेस है. So this indicator is divided by three parts. First, natural indicator. Natural indicator. What is a natural indicator? Natural indicator, that means that is a dye which identify the acid or base. Natural indicator, that means that type of indicators we obtained by nature. फूड स्टफ से जो हमको मिलता है वो जो कहलाता है फूड स्टफ से या नेचर से जो हमको इंडिकेटर मिलता है, दैट इंडिकेटर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स. डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स. फर्स्ट इज अ लिटमस. First is a litmus. That is a first indicator. That indicator is obtained by the lichen plant. That is obtained by lichen plant. ये lichen plant से हमको मिलता है. Lichen plant is a group of Thiophyleta. That is not important, but that litmus obtained by lichen plants. Lichen plants, that litmus original color is purple. That original color is purple, and then this litmus strip when dipped into the acid solution, blue color change into red color, and when dipped into the base solution, the red color change into the blue color. That is a litmus. First indicator, natural indicator, is a litmus. First indicator is litmus, that is obtained by lichen plant. That original color is purple. Original color is purple, and when dip into the acidic solution, the blue color change into red. When dip into the base solution, the red color change into blue. First. Second natural indicator is turmeric. Turmeric, that normal name is हल्दी. आप सबको पता है जो हम लोग खाने में यूज करते हैं. दैट इज बेटर ऑक्सीडेंट एजेंट. ये ऑक्सीडेंट एजेंट है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करता है. और अभी की सिचुएशन में जो कि इतना बुरा कंडीशन है कंट्रीज का, जिसमें बोला जा रहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा हमारे लिए मेडिसिन है, बोल सकते हो कि रोज एक ग्लास हॉट वाटर में हल्दी का दो डालकर थोड़ा सा पीना चाहिए. इससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है. So that is most important. So next indicator is turmeric. That color are yellow. That natural color are yellow when that dip into the acid. Okay, no change. Colors are no change, but dip into the base, that color change into red or reddish brown. ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर. तो ये है हमारा सेकेंड इंडिकेटर, टर्मरिक. टर्मरिक, दैट नॉर्मल नेम इज हल्दी, and that normal color is yellow. When that turmeric dip into the acidic solution, no any color changes. When dip into the base solution, that colors are changed. For example, when in our class, when we go any parties and take food, some
कुछ हमारे कपड़े में गिर गया हल्दी का कोई चीज, दैट कलर आर येलो. सो व्हेन वी वॉश द डर्टी क्लॉथ, सो हल्दी लगा हुआ जो क्लॉथ है, व्हेन यू सोप और डिटर्जेंट, you observe that the color are changed, the yellow color change into red color. Why? Because soap are basic nature and the turmeric change color when base contact this turmeric, so change red color. ठीक है, ये हमारा इंडिकेटर है. थर्ड है इसमें, थर्ड इंडिकेटर इसमें आता है रेड कैबेज. Red cabbage, that natural color is red. When dip into the acid, no any color changes. When dip into the base, the red color change into green. ये रेड कलर जो होता है ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है. ठीक है, ये भी एक इंडिकेटर. कुछ फ्लावर्स के पैटर्न्स भी होते हैं जो इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं. सम फ्लावर्स जस्ट लाइक अ हाइड्रोजीना, हाइड्रंजीना होगा, हाइड्रंजीना फ्लावर्स दैट पेटल्स चेंज कलर विथ एसिड, no change, but in base that color are change red to pink. That color, petals color are red, so with acid no any changes, but in base that color are change red to pink. That is our natural indicators. Next, synthetic indicator. Synthetic indicator, that means made by human, made in our laboratory, so that are called a synthetic indicator. Synthetic indicator जिसको हमने बनाया है कुछ केमिकल्स रिएक्शंस के थ्रू, उसको हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहेंगे. ये इंडिकेटर हमको नेचर से मिला है, हम इसमें कुछ नहीं किए हैं, वो हमको पता है कि नेचर से मिला है और ये इस तरह के कलर्स को चेंज कर सकता है एसिड और बेस में. सो नेक्स्ट इंडिकेटर इज सिंथेटिक इंडिकेटर. अभी हमने एसिड का इतना सारा पढ़ा, तो हम बताए थे कि एसिड जो होता है किस किस के साथ कलर चेंज करो, किस के साथ कलर चेंज नहीं कर, हमने यहाँ पे लिस्टिंग कर ली है. नेक्स्ट इज अ सेकंड इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर. Second is a synthetic indicator. Okay. Synthetic indicator made by human, made in our laboratory. First is a methyl orange. First synthetic indicator is our methyl orange. That color, नाम से पता चल रहा, that natural color are orange. When that methyl orange dip into the acid, when methyl orange dip into the acid, that color, orange color, change into red color. And when dip into the base, the orange color dip into the change into the yellow color. ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जिसका खुद का कलर ऑरेंज होता है, जब हम इसको किसी एसिड के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है, और जब हम किसी बेस के सॉल्यूशन को डिप करते हैं तो इसका ऑरेंज कलर येलो में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इज अ फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर. फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर जिसका कलर होता है कलरलेस, that are colorless. When that phenolphthalein indicator dip into the acidic solution, no any changes. Colorless as it is colorless. But when dip into the base, so that colorless change into pink color. That is a synthetic indicator. Got it? Now third part is olfactory indicators. That indicators are different indicators. All are discuss these indicators, that is a change color, but last indicator is not a change color, that is a change smell. स्मेल चेंज करता है, अगर एसिड और बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये कलर चेंज नहीं करता है, तो उसको नाम दिया गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. थर्ड इंडिकेटर इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. थर्ड
olfactory indicator. Olfactory indicators that indicators change smell. That indicators change smell. First, in that indicators use different type. That is also natural indicators, just like onion, vanilla essence, olive, called oil, that are olfactory indicators. First is the onion. Onion, that you know that कि ऑनियन का स्मेल कैसा होता है, थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, टीयर्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो इसका बहुत ही स्ट्रांग होता है स्मेल. अगर इसको किसी एसिड के कांटेक्ट में लाया जाए, when contact with acid solution, the onions does not change its smell. अपने स्मेल को कोई चेंज नहीं करता, लेकिन अगर बेस के कांटेक्ट में आता है the smell are destroy. स्मेल डिस्ट्रॉयड हो जाता है. ठीक है. सेकेंड इज वैनिला. वैनिला दैट स्मेल वेरी प्लेसेंट स्मेल. वैनिला का स्मेल बहुत प्लेसेंट होता है. अगर इसको एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं, दैट इज ऑल्सो डज नॉट चेंज इस स्मेल, बट व्हेन कांटेक्ट विद बेस सॉल्यूशन दैट चेंज इज स्मेल डिस्ट्रॉय. स्मेल बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है. ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो दैट आर इंडिकेटर्स. हमने 3 टाइप के इंडिकेटर्स डिस्कस किए. पहला इंडिकेटर्स था नेचुरल इंडिकेटर्स, जो हमको नेचर से मिला हुआ है. सेकेंड इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको हम लोग खुद बनाते हैं, लेबोरेटरी में बनाते हैं. थर्ड इंडिकेटर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. दैट इंडिकेटर इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर्स, बट दैट इंडिकेटर्स चेंज स्मेल, नॉट अ कलर चेंजेस. So we discussed 3 type of indicators. Now next indicator has completed. Next part is a base. Our next part is base. Base. Before discussing base, we discussed in last topic acid. Now some questions are formed. HCl, dilute HCl is react with carbonate or so bicarbonate. That reaction we already discussed. When that react with then form NaCl plus CO2 plus H2O. ये है एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी अपन डेली लाइफ में हमारे साथ ये चीज होता है कि अगर हमारी बॉडी में एसिडिटी इंक्रीज हो जाए, एसिडिटी इंक्रीज इन आवर स्टमक, सो हाउ कैन वी रिलीज? वी टेक एसिडिटी इंक्रीज, मतलब बॉडी में एसिड ज्यादा बन गया है, तो उसको रिलीफ करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई बेस देते हैं. तो नाउ वी टेक बेस, सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज अ बेस. व्हाई इज कॉलिंग बेस? दैट इज अ सॉल्ट. ये तो सॉल्ट बोलोगे, क्योंकि हम इसको बेस में क्यों बोल रहे हैं, तो इसका रीजन हम जब सॉल्ट पढ़ेंगे तब बताएंगे कि क्यों इसका बेसिक नेचर बोला जा रहा है. अभी आप ये समझो कि बेस की तरह यूज होता है. तो ये बेस है कि एसिड है, दैट इज एसिड, दैट इज अ बेस. तो एसिड और बेस जब आपस में कांटेक्ट होंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाते हैं. ठीक है, तो ये इसको न्यूट्रलाइज करता है. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में आता है कि एसिड को जब बॉडी में एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसको रिलीव करने के लिए हम कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं, क्यों करते हैं, तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं. ठीक है. वैसे एक चीज और इसमें क्वेश्चन और बनता है, कंडक्टिविटी. Conductivity. Acid are good conductor and acid are bad conductor, both. Acid are good conductor. I'm saying acid are good conductor, but I'm saying also acid are bad conductor. दोनों होता है. कब? जब एसिड, एग्जाम्पल बता रही हूँ, डिस्टिल वाटर and rain water, both are water, both formula are equal, but I'm saying that is a bad conductor, that is a good conductor. दोनों वाटर है, दोनों ही कहीं ना कहीं. अच्छा, तो सॉल्ट के बारे में, क्या वाटर के बारे में बात करें, एसिड में भी होता है. मैं एसिड के बारे में बता दी.
क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नाउ आस्क अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम. Distilled water is a bad conductor of electricity, but rain water is a good conductor of electricity. By मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम कर रहे हो, अगर उसमें डिस्टिल वाटर डालोगे तो कोई कंडक्टिविटी फॉलो नहीं करेगा, पास आउट नहीं होगा. लेकिन अगर वाटर के साथ करेंगे तो पास आउट होगा. क्यों? व्हाई? बिकॉज इन डिस्टिल वाटर नो एनी इम्प्यूरिटीज, कोई उसमें इम्प्यूरिटीज नहीं होती है. बट इन रेन वाटर सम इम्प्यूरिटीज आर प्रेजेंट. सो दैट्स व्हाई इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें या तो एसिड होगा या बेस होगा. उसके प्रेजेंस में आयोनाइज हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, और जब ये आयंस पे चेंज हो जाएंगे तभी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी. सो दैट्स व्हाई दैट इज अ कंडक्टर. सिमिलर एसिड की भी मैंने बात वही की. एसिड अगर प्लेन एसिड है, जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में, सिर्फ एसिल की बात करूंगी मैं. तो एसिल की बात करूंगी, ये वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं है, दैट मीन्स कि बैड कंडक्टर है, क्योंकि वाटर के साथ डिसॉल्व होगा नहीं तो H प्लस रिलीज नहीं करेगा, आयोनाइज नहीं होगा. जब तक आयोनाइज नहीं होगा ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा. लेकिन जैसे ही मैं इसको वाटर के साथ ऐड कर देती हूँ, बोथ आर डिसोसिएट. अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मिल चुके हैं. नाउ वी ऑब्टेन द पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, very easy pass out electricity. So that is a important part in acid. Now we start base. Base first, same discussion. सेम डिस्कशन जैसे हमने एसिड में देखा वहीं से स्टार्ट हम बेस के लिए भी करते हैं. बेस, व्हाट इज अ बेस? रिलीज OH माइनस आयन इन अ aqueous solution. रिलीज OH माइनस आयन. OH माइनस आयन को जो रिलीज करता है एक्वा सॉल्यूशन में वो बेस कहलाता है. ठीक है. और जो OH माइनस आयन रिलीज करता है उसको हम कहते हैं एल्केलाई. That are called alkalis. But all base are alkali. सारे बेस alkali होते हैं? No, not. All alkalis are base, but all base are not alkali. How? मैंने आपको अभी इसका रीजन बताया. एल्केलाई कौन होगा? जो OH माइनस आयन रिलीज करेगा, है ना. जस्ट एग्जाम्पल NaOH, जस्ट एग्जाम्पल NH4OH, जस्ट एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये सब बेस है एंड सारे के सारे एल्केलाइन है क्योंकि सब में OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है. बट नाउ अमोनिया इज ऑल्सो बेस. अमोनिया भी बेस है लेकिन यहाँ पे OH माइनस आयन रिलीज नहीं हो रहा है. तो एल्केलाई कब बोलेंगे? जब ये रिप्लेस करता है तब. लेकिन हम इसको बेस कब बोलेंगे? जब ये कोई H प्लस आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है. जब में ये चैप्टर का लास्ट होगा हमारा, तब हम बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एसिड और बेस को 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दिया था. अर्नियस, ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी, लेविस की बेस पर. उसको हमने डिस्कस किया. तो ये 2 पार्ट है. इसको भी बेस बोलेंगे, इसको भी बेस बोलेंगे. ये बेस कब हुआ? जब ये OH माइनस आयन रिलीज करता है, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं. तो इसको हमने बेस क्यों बोला? क्योंकि बेस का एक और डेफिनेशन आता है कि जब कोई सब्सटेंस H प्लस या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो भी बेस कहलाता है. ठीक है. तो ये बेस है. तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऑल एल्केलाई आर बेस बट ऑल बेस डज नॉट एल्केलाई. सारे एल्केलाई बेस होते हैं क्योंकि सारे एल्केलाई के पास OH प्रेजेंट होता है. वाटर में डिसॉल्व करने पे OH माइनस आयन को रिलीज करते हैं. लेकिन सारे बेस एल्केलाई नहीं होते क्योंकि सारे बेस जो होते हैं सबके पास OH हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं. इट इज नॉट पॉसिबल ऑल बेस कंटेन OH माइनस आयन. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये डेफिनेशन दूसरा हो जाता है. ठीक है. तो ये 2 तरीके का यहाँ पर डेफिनेशन आता है. थर्ड, दैट टेस्ट इज बिटर, बिटर टेस्ट. ओके. एंड सोपी टच. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टर्मरिक नाउ वी यूज एज ए इंडिकेटर फॉर बेस. टर्मरिक चेंज द कलर एनी बेस. तो सोपी टच मतलब जो बेस होता है उसका टच अगर छूओगे तो सोपी, सोप के जैसा होगा.
ठीक है, ये था इंडिकेटर्स। हमने देख लिया है कि कौन सा इंडिकेटर्स कहाँ कैसे बेस को चेंज करता है। लिटमस change red litmus change into blue color, phenolphthalein change into pink color, methyl orange change into yellow color, and different type of indicators already we discussed, so not again repeat. Clear? Now chemical properties. Next is the properties. Chemical properties. First properties. Reaction with metal. Similar. Just like acid. Metals react with NaOH, then form sodium zincate, Na2ZnO2, then release H2. H2, not H2. ठीक है, जिंक react with base then form salt, sodium zincate, that name is sodium zincate. Okay, it means metal base then form salt and release hydrogen gas. Second point, reaction with non-metal. Reaction with non-metal. Non-metal एग्जाम्पल देती हूँ. फर्स्ट, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस. That carbon dioxide react with base and form sodium carbonate plus H2. ठीक है, yes, aqua liquid. ठीक है, रिएक्शन, ये रिएक्शन वेरी सिंपल से रिएक्शन हमने लिखा है यहाँ पे. अब इस रिएक्शन को दिख रहा है आपको कि इस रिएक्शन से क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं. तो पहले तो ये समझ लो, सॉलिड गैस. ओके, नाउ एक्टिविटी. Carbon, solid form. Take a spoon and put some charcoals. That is a carbon. And put upon the burner. And after putting, the charcoals are burned and change into carbon dioxide gas. चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलने लगेगा और वहां पे वेपर का फॉर्मेशन होगा, गैस बनेगा. दैट स्पून dipped into the test tube and that test tube present water. When that test tube present water, spoon dipped into the test tube. That is a carbon dioxide, that is a water. Both are react to each other. Then form H2CO3. H2CO3, that name is carbonic acid. That is a carbonic acid. After reacting, we take a litmus paper. Which litmus paper? Red litmus paper. And dip into this solution. Sorry, not a red litmus, blue litmus paper. Dip into this test tube. Take a blue litmus paper and dip into this solution. So blue litmus change into red color. So we identify both are react to each other and form acid. ठीक है.
मेरे बताने का मतलब ये था कि ये कार्बन एक नॉन मेटल था जो कि ऑक्साइड में चेंज हुआ और इसका नेचर कैसा निकला, एसिडिक नेचर निकला। और इसका नेचर एसिडिक होने की ही वजह से हम यहाँ पे इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, बेस से। एसिड से रिएक्शन कभी भी नॉन मेटल्स का नहीं होता है, याद रखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था है ना। आज का एग्जाम मोस्टली metal oxide always react with acid and non-metal oxide always react with base. Why? मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिड के साथ और नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा बेस के साथ रिएक्ट होता है, क्यों? द आंसर इज मेटल ऑक्साइड नेचर इज बेसिक नेचर. Why nature basic nature? Because metal oxide dissolve in water and change into base. So that's why that nature is basic. And base always react with acid. And non-metals, that nature is acidic. Now you see. Okay. So that nature is basic. So that's why that always react with base. Clear? तो ये हमने यहाँ पे बेस का टॉपिक क्लियर कर लिया. इसमें थोड़े बहुत और बचे हुए हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम अगला देखेंगे जो कि लास्ट पार्ट होगा, जिसमें पूरे सॉल्ट और बेस का कुछ और न्यूट्रलाइजेशन का कुछ टॉपिक है. अगर आपको इसमें से कोई डाउट होता है तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नाउ यू आस्क द क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट्स. ओके, गुड बाय.